Welcome my dear students to my channel So Easy Math. My dear students, today we will do sample paper of class plus 2 term 1 exam. वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फंक्शन डिफाइंड बाय एफ आर चेंजेस टू आर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। आप चैक करना बेटा जी 1 1 आ ऑन टू आ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਟਾ ਡੋਮੇਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਡੋਮੇਨ ਆਫ ਐਫ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਰੇਂਜ ਆਫ ਐਫ ਕਿੰਨੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ ਆ। 1 1 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨ ਕੋਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਮੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਫ ਆਫ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਐਫ ਆਫ -1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਸੇਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਇਹ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਮੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਹੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਨਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਫ ਵਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ, ਪਰ ਬੇਟਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰੇਂਜ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਈਦਰ 1 1 ਨੋਰ ਔਨ ਟੂ, ਸੋ ਇਟਸ ਆਪਸ਼ਨ ਬੇਟਾ ਆਂਸਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਡੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਲੈਟ ਏ ਕੋਈ ਸੈਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ 1 to 5 ਤੱਕ ਕੁਝ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਇਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆ ਬਿਟਵੀਨ ਐਕਸ ਐਂਡ ਵਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਪਲਸ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਜ਼ ਏ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨਡ ਔਨ ਏ ਦੈਨ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਕਸ ਪਲਸ 2। ਚਲੋ ਆਪਾਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ 1 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਪਲਸ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3। ਇਟ ਮੀਨਸ ਫਸਟ ਬੇਟਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਆਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਹ ਸੈੱਟ ਏ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 2, ਵਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਪਲਸ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4। ਮੀਨਸ 2 4 ਆ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸ 5 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਪਲਸ 2 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10। ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਵਰ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਲੀਅਰ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਜੀ cos ਇਨਵਰਸ ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਮਾਈਨਸ cos ਆਫ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ cos ਇਨਵਰਸ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਈਨਸ cos ਆਫ 2 ਪਾਈ ਬਾਈ 3 ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਪਾਈ ਬਾਈ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਆ, ਪਾਈ ਮਾਈਨਸ ਮੀਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਣ ਜੂ ਬੇਟਾ cos ਇਨਵਰਸ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੀਨਸ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲਸ cos ਆਫ ਪਾਈ ਬਾਏ 3। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, cos ਇਨਵਰਸ ਤੇ cos ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਈ ਬਾਏ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੀ।
दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो जी, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू, यदि बेटा वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपां ने। देखो साइन इनवर्स किन्ने साइन की कीमत बेटा 1/2 हुंदी आ, साइन π/6 दी, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होंगी है 1/2। साइन इनवर्स ना साइन कैंसल आउट हो गया, तो अपना आंसर कितना आ गया बेटा जी π/6। इट्स ऑप्शन डी, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, दैन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। ये बेटा बिल्कुल क्लीयर आ, x मीनस डोमेन, ठीक है। यदि बेटा डोमेन कितनी होएगी अपने कोल, साइन इनवर्स x आ बेटा, ठीक है। यदि वैल्यू x किनू बिलोंग करता है, कि लाई करता है, लैस दैन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, ठीक है जी। सो इट्स आंसर इज बेटा जी सी ऑप्शन, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू y, दैन x बिलोंग्स टू द इंटरवल। कॉस इनवर्स ते साइन इनवर्स दोनों की बेटा डोमेन सेम होंगी आ, सो इट्स आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x 1/3 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। अपने को फार्मूला होंगे बेटा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखो दोनों के एंगल की होंगे ने सेम, इत्थे π/2 आ, तो दोनों एंगल की होंगे सेम। इट मीनस इत्थे x की वैल्यू की होगी बेटा जी 1/3, दैट इज क्लियर। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1 इज, देखो बेटा कॉस इनवर्स 1 किन्ने दी वैल्यू होंगी है, कॉस ऑफ 0। कॉस 2π की वैल्यू भी होंगी बेटा, पर 2π अपने को ऑप्शन दे विच नहीं है। कॉस इनवर्स ना कॉस इनवर्स कैंसल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया अपने को 0। इट्स ऑप्शन ए, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, इफ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज 2x3 and order of matrix B is 3x5, then the order of matrix A into B। देखो बेटा जेड़ा A मैट्रिक्स आ, एदा ऑर्डर कितना अपने को देखो 2x3, जेड़ा अपने को B मैट्रिक्स आ, ठीक है, एदा ऑर्डर कितना अपने को 3x5। देखो बेटा दोनों की मल्टीप्लाइकेशन तां हो सकती है जो फस्ट दियाँ रोज़, ठीक है, सॉरी फस्ट दियाँ कॉलम्स सैकेंड दियाँ रोज़ दे की होन बराबर, ठीक है। देखो फस्ट दियाँ कॉलम मीनस 3, सैकेंड दियाँ रोज़ दे की होन बराबर, फिर मल्टीप्लाइकेशन हो सकती है, ठीक है। तो अपने को जिहड़ा मल्टीप्लाई करके जिहड़ा आंसर आउंदा हुंदा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुंदा, फस्ट दियाँ की चक्कांगे रो, सैकेंड दियाँ की चक्कांगे जी कॉलम, मीन्स 2x5, ठीक है। सो आवर आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो जी, इफ देखो दो मैट्रिक्स गिवन ने, ठीक है। फस्ट मैट्रिक्स देखो बेटा 2 रोज़ ने 2 कॉलम्स ने, ये 2x2 का आ। जिहड़ा सैकेंड मैट्रिक्स आ, ये भी देखो 2 रोज़ 2 कॉलम ने, मीनस 2x2 का आ, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर की है बेटा जी सेम, सो वी कैन इक्वेट, आप दोनों ने इक्वेट कर सकते हैं। देखो फस्ट पहला इनू इतने एलीमेंट करते हैं बेटा A11, दोनों के बहुत एलीमेंट्स, मीनस 2x + y इज इक्वल टू 5। सैकेंड आप x नाल 3 नू इक्वेट कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू तो निकल गई बेटा जी 3, ये पुट कर दो 2 × 3 + y इज इक्वल टू 5, 3 × 2 6, y इज इक्वल टू 5 - 6, y की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -1, ठीक है जी। देखो केड़ी ऑप्शन है जी, ये डी ऑप्शन,
दैट इज़ क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा जी, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, दो मैट्रिक्स ने, दो का जोड़ किहदे बराबर आ, सी दे, वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 5x5, मीनस 5 रोज ने, 5 की ने कॉलम्स, दैन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का बेटा अपने ऑर्डर फाइंड आउट करना है। देखो बेटा जी, दो मैट्रिक्स की एडिशन तां हो सकती है जे दोनों का ऑर्डर की होवे सेम, ठीक है। जे बी का ऑर्डर अपने को 5x5 आ तो ए का ऑर्डर भी कितना होएगा 5x5, ठीक है। ताही बेटा जी आप वी कैन ऐड, सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा, इफ ए बी इज इक्वल टू सी वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x5 and 5x5 रिस्पैक्टिवली, दैन द ऑर्डर ऑफ ए, बेटा जी ए का ऑर्डर अपने फाइंड आउट करना है। देखो दो मैट्रिक्स ने ए बी इज इक्वल टू सी, ए का ऑर्डर देखो बेटा जी कितना अपने कोल आपां फाइंड आउट करना है। ऑर्डर ऑफ बी कितना बेटा जी 2x5 तो ऑर्डर ऑफ सी कितना बेटा जी 5x5। तो बेटा मैं पहला भी ये चीज़ दसी सी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन तां हो सकती है जो फस्ट दियाँ कॉलम्स सैकेंड दियाँ रोज के की होन बराबर, ठीक है। इट मीन फस्ट मैट्रिसेस आ ये कॉलम किनिया होणगियां अपने कोल 2, ठीक है। जे फस्ट दियाँ कॉलम सैकेंड दियाँ रोज के बराबर होणगियां तां ही दोनों की की होएगी मल्टीप्लीकेशन, तो आंसर दे विच की आउंदा हुंदा फस्ट दियाँ रोज सैकेंड दियाँ कॉलम्स, ठीक है। मीनस बेटा ए मैट्रिक्स दियाँ रोज किनिया होणगियां अपने कोल 5, ठीक है जी। इट मीनस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए कितना होएगा जी 5x2, दैट इज क्लीयर, इट्स ऑप्शन बी। नैक्सट देखो बेटा जी, इफ ए, देखो ए मैट्रिक्स अपन गिवन आ, ठीक है, 2x2 का आ, 2 रोज 2 कॉलम्स, दैन A12 इज इक्वल टू, देखो बेटा जिमें ए मैट्रिक्स आ, ठीक है, ये एलीमेंट्स किद्दां लिखांगे आपां A11 A12 मीनस फस्ट रो फस्ट कॉलम, फस्ट रो सैकेंड कॉलम, A22 21 मीन्स सैकेंड रो फस्ट एलिमेंट, फिर A22 सैकेंड रो सैकेंड कॉलम, ठीक है। हुण आपां ने A12 फाइंड आउट करना मीन्स दिस वन, तो केड़ा आंसर आ गया बेटा अपने को 6, ठीक है। सो आवर ऑप्शन इज सी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा, इफ ए, देखो ए मैट्रिक्स अपन गिवन आ, दैन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, अपन पता बेटा जी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हुंदा अपने को रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, ठीक है। रोज किनिया देखो फस्ट रो सैकेंड रो, ठीक है, 2 रोज हो गई, कॉलम किनिया ने 1 2 3 कॉलम्स हो गई, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया जी 2x3, इट्स ऑप्शन बी, दैट इज क्लीयर। नैक्सट देखो बेटा जी, फॉर ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज इज इक्वल टू, देखो बेटा ए ट्रांसपोज द ट्रांसपोज किदे बराबर हुंदा बेटा जी सेम वही मैट्रिसेस मीन्स ए, सो इट्स ऑप्शन ए, दैट इज क्लियर। नैक्सट देखो बेटा, इफ एफ ऑफ एक्स, देखो फंक्शन अपन गिवन आ mx-1 इफ एक्स लैस दैन इक्वल टू 5, 3x - 5 इफ एक्स ग्रेटर दैन 5, वो कहना इस कंटिन्यूस फंक्शन आ, दैन द वैल्यू ऑफ m आपां ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कंटिन्यूस मीन्स मतलब जी बेटा लैफ्ट साइड लिमिट किदे बराबर होएगी राइट साइड लिमिट की, ठीक है। बोथ आर इक्वल, चलो आप फाइंड आउट करते हैं। लैफ्ट साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट
x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, ठीक है जी। एफ ऑफ x अप्रोचेस टू x नेगेटिव मीनस x लैस दैन 5, ठीक है। ये वैल्यूज पुट करांगे आपां लिमिट x अप्रोचेस टू -5 दे उपर नेगेटिव साइन मीनस लैफ्ट हैंड साइड है बेटा। एफ ऑफ x कितना mx -1। मैथड की है बेटा इन्हूं पुट करन दा, आपां पुट करदे हुन्ने आ x इज इक्वल टू, क्योंकि लैफ्ट हैंड साइड आ 5 - h, ठीक है जी। एंड x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव एज h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। लैफ्ट हैंड साइड लिमिट बेटा ये वैल्यूज पुट कर दो। ये बन गई अपने को लिमिट h अप्रोचेस टू 0 m, जिथे x उत्थे की पुट करांगे बेटा जी 5 - h, ठीक है, माइनस दे 1। हुण बेटा h की नूं h की वैल्यू की पुट करोगे 0, ये बन गई m इंटू 5 - 0 -1 मीनस ये बन गया बेटा अपने को 5m - 1। बेटा जी मैं तुहानूं प्रॉपर मैथड सिखा रही हाँ, ठीक है, सॉल्व करन दा। सिमिलरली आपां राइट हैंड साइड लिमिट सॉल्व करांगे, इहनूं राइट डाउन कर लो। हुण देखो राइट हैंड साइड लिमिट ये किद्दां सॉल्व करदे आ, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x, ठीक है जी। ये बन गई लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव मीनस x ग्रेटर दैन 5, किन्नी अपने को 3x - 5। ये पुट कर दो बेटा x इज इक्वल टू 5 + h, ठीक है जी। एंड x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एज h अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये बन गई बेटा अपने को लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 5 + h माइनस दे 5, ठीक है। हुण h की पुट कर देंगे बेटा जी आपां 0, ठीक है जी। ये बन जूगी अपने को 3 5 + 0 माइनस दे 5। 3 नूं 5 नाल किता 15, 15 - 5 इज इक्वल टू 10, ठीक है जी। राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई अपने कोल 10। एक आपां किह च पुट करदे हुन्ने आ इक्वल टू दे विच, देखो किद्दां सीधा वैल्यू बेटा एफ ऑफ 5 जिस इक्वल टू दा साइन आ मीनस m जिथे x उत्ते 5 पुट कर देंगे माइनस दे 1 मीनस 5m - 1, क्योंकि बेटा कंटीन्यूस आ लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड तो एफ ऑफ 5 तीनों की होणगे इक्वल। इट इंप्लाई बेटा लैफ्ट हैंड साइड कितनी सी अपनी 5m - 1, ठीक है। राइट हैंड साइड कितनी सी बेटा जी 10 तो इक्वल टू वाली कितनी है 5m - 1। दो वैल्यूज ले लो बेटा, ये बन गया 5m इज इक्वल टू 10 + 1 इज इक्वल टू 11। m कितना आ गया अपने को 11/5, ठीक है जी। प्रॉपर मैथड है बेटा सॉल्व करन दा, ठीक है जी। सो इट्स ऑप्शन ए, दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा जी क्वेश्चन 17, देखो फंक्शन गिवन आ एफ ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ 7x/3x, x इज नॉट इक्वल टू 0 तो m इफ x इक्वल टू 0। ये भी बेटा कंटीन्यूस आ 0 के उपर, दैन द वैल्यू ऑफ m आपां ने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हुण बेटा च लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की लोड़ नहीं, क्योंकि ना ही इत्थे मॉडलस का साइन आ, ना ही लैस और ग्रेटर का साइन आ, ना ही GCD फंक्शन आ, ठीक है जी। तो आप सीधा सॉल्व करांगे इनू, देखो किद्दां लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x/3x, बेटा पहले ही 0 नूं अप्रोच कर दी है, ठीक है। अपन कुछ भी पुट करन दी लोड़ नहीं, बस एक फार्मूला ध्यान च रखना केड़ा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ x/x, इहदी वैल्यू कितनी हुंदी बेटा जी 1, ठीक है। मीनस एंगल दोनों की होने चाहिए ने सेम। हुण बेटा आप एंगल सेम बनावांगे किद्दां, देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ 7x, मैं बेटा 7 नाल ही डिवाइड करता इनू 7 नाल ही मल्टीप्लाई करता, फंक्शन च कोई फर्क नहीं पिया,
नाल के बेटा अपने को 3x, x मैं 7 ना ला लिया, 3 मैंने साइड पे लिखता। ठीक है जी। हुण देखो ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग sin 7x / sin x लिमिट x अप्रोचेस टू 0 यदी वैल्यू कितनी होएगी बेटा जी 1 × 7/3 = 7/3 तो x सीधा 0 तो कितना आ f(0) कितना गिवन आपां नूं m क्योंकि बेटा कंटीन्यूस आ बोथ वैल्यूज़ आर इक्वल इट इंप्लाई m की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 7/3 दैट इज़ क्लीयर। देखो किहड़ी ऑप्शन आ जी ये डी। नैक्सट देखो जी अपन गिवन आ f(x) = x³ - 8 by x - 2 x is not equal to 2 and k if x is equal to 2 is continuous at x is equal to 2 then the value of k is ये भी बेटा सेम इदी करांगे लैफ्ट हैंड साइड नहीं निकलनी सीधी वैल्यूज पुट करांगे किद्दां देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 रकम किन्ने बेटा अपने को x³ - 8 डिवाइडेड बाय x - 2 देखो बेटा अपने को फार्मूला हुंदा किद्दां आ देखो x अप्रोचेस टू 2 ठीक है x³ - 8 नूं आपां किद्दां लिख सकते हैं 2 दा क्यूब डिवाइडेड बाय x - 2 ठीक है जी। ये बन गई बेटा अपने को लिमिट x अप्रोचेस टू 2 a³ - b³ की फार्मूला हुंदा बेटा a - b a दा स्क्वायर प्लस a × b प्लस b दा स्क्वायर ठीक है जी डिवाइडेड बाय x - 2 ये बेटा कैंसल आउट हो गया बाकी तो सीधी वैल्यू भी पुट कर सकते हो या 2 + h नाल भी सॉल्व कर सकते हो। चलो आप सीधी वैल्यू पुट कर देने ये बन जाऊगा 2 दा स्क्वायर प्लस 2 × 2 प्लस 2 दा स्क्वायर 4 2 दा 4 + 4 + 4 कितना बन गया बेटा जी अपने को 12। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो जी डेरिवेटिव ऑफ d/dx मीन्स डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स e dx इज इक्वल टू देखो बेटा अपने को डेरिवेटिव हुंदा आ tan इनवर्स x दा की हुंदा 1/1 + x दा स्क्वायर ठीक है जी। हुण आप फार्मूला यूज़ करांगे इहदे च पुट करन लई tan इनवर्स x की थां ते की आ e dx तो अपना कितना बन गया 1/1 + e dx दा स्क्वायर हुण की होगा एंगल दा डेरिवेटिव d/dx × e dx ये बन गया जी 1/1 + e dx दा स्क्वायर मीनस e दी 2x e dx दा डेरिवेटिव बेटा जी e dx ठीक है तो अपना आंसर आ गया e dx / 1 + e दी 2x देखो किहड़ी ऑप्शन आ जी ये बी दैट इज क्लीयर। नेक्स्ट देखो बेटा y इज इक्वल टू sin x देन एट x इज इक्वल टू π/2 y2 मीनस सैकेंड डेरिवेटिव अपन ने फाइंड आउट करना है। देखो y इज इक्वल टू sin x y1 मीनस फर्स्ट डेरिवेटिव साइन द डेरिवेटिव जी cos x ठीक है y2 मीनस सैकेंड डेरिवेटिव cos द डेरिवेटिव बेटा जी माइनस दे sin x आप यदि वैल्यू कितने फाइंड आउट करनी है π/2 ते वैल्यूज पुट कर दो माइनस sin π/2 sin 90 की वैल्यू कितनी होंगी बेटा जी अपने को 1 सो आवर आंसर इज -1 इट्स ऑप्शन ए दैट इज क्लियर। नैक्सट क्वेश्चंस बेटा आप नैक्सट वीडियो विच करांगे। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना। थैंक्स बेटा जी।